ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واجب الاحترام معزز محتشم مہمانان گرامی، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذی وقار، صدر محفل، نقیب محفل، خدا حضرات، اور آج کی اس بابرکت سالانہ محفل جلسہ دستار فضیلت جامعہ حاضہ اور مسجد حاضہ میں بیٹھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے غلاموں، انتہائی صمیم قلب سے سلام عقیدت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کی اس حسین بزم کے میزبان زینت القراء، استاذ القراء، محبوب اہل سنت حضرت علامہ قاری عبدالرشید قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور اس مسجد کی مدرسے کی جملہ انتظامیہ اور معاونین اور طلباء کو، جنہوں نے اس مادیت پرستی کے دور کے اندر جہاں ہر بندہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں دولت کے پیچھے مارے مارے پھر رہا ہے، ایسے پرفتن اور ایسے پرفتن ماحول کے اندر قاری صاحب قبلہ نے قرآن کی شمع لے کر نوجوانی پہ سینوں کو منور فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش اور ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اگر اپنے مقتدر اور مشائخ اور سادات کا نام لینے لگ جاؤں تو جو میرا وقت ہے آپ کے ساتھ ایک پیغام دینے کا ناموں میں لگ جائے گا، تو میں سب سے دست بسستہ اجازت لیتے ہوئے بلا تاخیر قرآن پاک کا ایک میسیج آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سامعین محترم، آج قرآن کے درس کا جلسہ ہے، میسیج اور پیغام جو ہم نے لے کر جانا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا غور کر کے بیٹھیں گے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، وہ صحیفہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے علاوہ آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں، 4 بڑی کتابیں تھیں اور 100 چھوٹے صحیفے تھے، لیکن تمام کتب جتنے بھی نازل ہوئیں وہ اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن کسی کتاب کو اللہ نے خود تلاوت نہیں فرمایا۔ اگر اللہ نے خود تلاوت فرمائی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ وہ بھی رب کے کلام تھے، لیکن اللہ کسی کی تلاوت نہیں کرتا، اگر تلاوت فرماتا ہے تو وہ بولے میرے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ دیکھیں اور اپنے ایمان کو منور کریں، اپنے سینے کو روشن کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا القرآن احب الی اللہ تعالی من السماوات والارض ومن فیہن، فرمایا کہ لوگوں کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے اگر محبت فرمائی ہے تو یہ قرآن ہے۔ کائنات انسانی سے بھی ساری کائنات سے بڑھ کر ہم مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، حضور اللہ کے محبوب ہیں، لیکن مصطفیٰ اللہ کی مخلوق، حضور اللہ کی علماء سے اجازت لیتے ہوئے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب حضور کی ذات ہے، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہیں کائنات میں سب سے بڑھ کر رب جس سے پیار کرتا ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ رب جس سے بڑھ کر پیار کرتا ہے تو اب ایمان سے بتائیں، اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ اس سے محبت کریں گے تو ایمان سے بتائیں والد کتنی محبت کرے گا۔ جب قرآن سے ہم پیار کر رہے ہوں گے، قرآن سے اپنے اولاد کے سینوں کو روشن کر رہے ہوں گے، خود اندازہ کریں کہ رب کے کتنے محبوب بن چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे खिलाफत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसको हम आज इस दौर में मौजज़ाए मुस्तफ़ा भी कहते हैं। हुजूर का मौजज़ा अल्लाह ने अंबिया को मौजज़े अता फरमाए, 1.25 लाख पैगंबर आए कम बेश। अल्लाह ने हर नबी को अपनी नबी की नबूवत की दलील के तौर पर मौजज़ा अता फरमाया, और अल्लाह ने हर नबी को एक गिनती की तादाद में, महदूद तादाद में अल्लाह ने मौजज़े अता फरमाए। सबसे ज्यादा अगर मौजज़ात की तादाद आती है तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है, 9 मौजज़े अता फरमाए। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को मौजज़े दिए तो मुफस्सिरीन गिनने पर कासिर हैं, मुहद्दिसीन गिनने पर कासिर हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल-गर्ज़ अल्लाह ने अपने महबूब को सरापा मौजज़ा बना दिया। अल्लाह ने अपने महबूब को जितने मौजज़ात अता फरमाए, हम वो सुन तो सकते हैं लेकिन उन मौजज़ों को देख नहीं सकते। हम मेराज का मौजज़ा सुनते हैं उलमा से, लेकिन मेराज हम होते हुए देखा नहीं है। हम हुजूर ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े फरमाए, हमने सुना तो है उलमा से, लेकिन अपनी आंखों से हमने देखा, बोले मेरे साथ, नहीं है। हुजूर ने उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस पलटाया है, हमने सुना तो है उलमा से, लेकिन देखा नहीं है। हुजूर ने लुआबे धान डाल के जाबिर की हंडिया में सारे मदीने को सैराब कर दिया। बाबा हमने सुना तो है लेकिन देखा नहीं है। हुजूर ने अल्लाह की इज्जत की कसम एक प्याले में अपने हाथ ऊपर रख के 1500 को सैराब करके हमने वो मौजज़ा सुना है लेकिन देखा नहीं है। सुनते रहे, दिल में ख्वाहिश आती है कि या इलाहुल अमीन कोई मौजज़ा ऐसा तो हमें 1400 साल बाद पैदा कर दिया। हम तेरी इस इंतखाब पे राजी हैं। जमाना मुस्तफा न मिला क्योंकि हमारी आंखें इस काबिल नहीं थी, हमारा वजूद इस काबिल नहीं था। मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दिया, ये इतना बड़ा एहसान है। लेकिन दिल, अबू बकर के दिल के अंदर भी दिल था, अबू बकर के सीने के अंदर दिल था, तो दिल तो हमारे सीने के अंदर भी है। अबू बकर के दिल के अंदर मोहब्बत थी मुस्तफा की, हमारे सीने में भी है। तो आज हम चाहते हैं कोई एक खैरात तो मौजज़े की हमें भी अता फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों उम्मतीयों, अगर तुम चाहते हो मुस्तफा के मौजज़े को देखना चाहते हो तो फरमाया क़यामत तक एक मौजज़ा ऐसा भी मुस्तफा को दिया है, हर दौर का मुसलमान जब चाहे उस मौजज़े को देख सकता है। बारी ताला वो कौन सा मौजज़ा है? फरमाया वो मौजज़ा मौजज़ा कुरान है। हुजूर का ये वो मौजज़ा है जो आज इस 1400 साल बाद भी हम उसका दीदार कर सकते हैं। याद रखें मेरी बात, आज मैं एक मैसेज देने वाला हूं क्योंकि ये सालाना सारी रात जलसा हो, मदरसे के बारे में हमारा ज़हन न बने, फिक्र न हो, दिल में हमने कुरान का खाना न बनाया और दिल में हमने मदरसे का खाना न बनाया। यकीन कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम, नमाज पढ़ने से आपकी आखिर तो संवरेगी। लेकिन मैं आपकी इजाजत से जुमला करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत से जुमला करना चाहता हूँ, नमाज पढ़े आखिरत संवरेगी, आपकी नमाज से दीन नहीं फैलेगा। आप मस्जिद बनाए आखिरत संवरेगी, मस्जिद से दीन नहीं फैलेगा। आप हज करें, आपके हज से आखिरत तो संवरेगी, लेकिन दीन मुस्तफा का नहीं फैलेगा। आप रोजा रखें, आपके रोजे से आखिरत तो संवरेगी, लेकिन मुस्तफा का दीन नहीं फैलेगा। दीन कैसे फैलेगा? फरमाया अगर दीन फैलाना चाहते हो तो फिर कुरान के नौकर बन जाओ, कुरान के खातिब बन जाओ, मदरसे आ जाओ, मदरसे की सरपरस्ती कर लो। सैयदना सुल्तान महमूद गजनवी जाते जाते एक मदरसे के अंदर चले गए। बच्चे तालिब इल्म थे, मदरसे में पढ़ रहे थे, कोई आलिम बन रहा था, कोई हाफिज बन रहा था, कोई कारी बन रहा था। आपने पूछना शुरू कर दिया, बेटा किस लिए पढ़ रहे हो? जी हाफिज कुरान बनूंगा, माँ बाप को सवाब पहुंचाऊंगा। बेटा किस लिए पढ़ रहे हो? जी कुरान पढ़ूंगा, खानदान का नाम रोशन करूंगा, वालिदैन का नाम रोशन करूंगा। एक कोने में बच्चा बैठा था, फरमाया बेटा तू किस लिए पढ़ रहा है?
कुरान इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कुरान को पढ़ूं और कुरान को समझकर फिर कुरान की तालीम को आगे फैलाऊं और दीन को फैलाऊं। आपने फरमाया बेटा अगर तू इस मदरसे में ना होता ये मदरसा भी बंद तो मदरसा बंद कर देता। आप जानते हैं कि वो बच्चा जिससे सुल्तान पूछ रहा है महमूद गजनवी, वो बच्चा कौन था जिसको आज आप दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह दाता दरबार जाने वालों, यार हम रात को जाते हैं, हम 11 बजे से यहाँ बैठना है, 12 बजे बैठना है, क्यों जी सुबह दाता दरबार पे हमने नमाज पढ़नी है। यार कभी हाजिरी दे के कभी दाता साहब से पूछा भी सही कि दाता हम हाजिरी देने आए हैं, यार पूरी जिंदगी कुरान की नौकरी करते करते गुजार दी, इसीलिए नहीं कहता पीरों का पीर अगर मैं दाता पा लेता तो दाता का मुरीद बन जाता। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा हुजूर बताएं कुतुब बन गए, गौस बन गए, कैसे बने? फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, फरमाया कि मैं कुतुब बना ही इसलिए हूँ, कुरान पढ़ता रहा हूँ, कुरान पढ़ता रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे गौस बना दिया। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ अजीजान मोहतरम, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुज़रे शकीब बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके एक शागिर्द हैं शेख हातिम अल असम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने अपने शागिर्द से पूछा, फरमाया बेटा मेरे साथ इतना अरसा रहा, मेरे पास पढ़ता रहा, खिदमत करता रहा, बता मुझसे तूने क्या सीखा है? उस्ताद बच्चों से पूछता है ना, आज भी मैं असातिज़ा की बारगाह में 10 बरसात करना चाहता हूँ, कभी अपने शागिर्दों से पूछा करें कि हमसे आपने क्या सीखा। ऐसा लिबास हो उस्ताद का, ऐसा लिबास हो, शागिर्द कहे कि बाकी जो उस्ताद लिबास पहन के बैठा है मुझे भी ऐसा लिबास पहनना, ऐसा अखलाक हो उस्ताद का। शागिर्द कहे कि मैं अपने उस्ताद का इखलास बनाना चाहता हूँ। शाह साहब किबला की इजाजत से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, शेख अल हातिम असम ने से आपने पूछा शकीब बल्खी रहमतुल्लाह ताला ने बेटा क्या सीखा? उसने कहा हुजूर मैंने 2 चीजें आपकी खिदमत में सीखी, मैंने इस दुनिया में देखा जो भी आपके पास आया या मुहिब आया है या महबूब आया। दुनिया में या मैंने मुहिब को आते हुए देखा या महबूब को आते हुए देखा, या तो वो दावा करने वाला है कि मैं मुहिब हूँ या वो दावा करने वाला है कि मैं महबूब हूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर जब मैंने 2 तबके देखे मुहिब और महबूब को देखा, फिर मैंने उनकी मोहब्बत के लेवल को चेक किया, देखा कि जो मोहब्बत का दावा कर रहा है इसके अंदर जज्बा मोहब्बत कितना है, ये महबूब को चाहता कितना है, महबूब को कितना प्यार देता है। ये जो महबूब है जिससे मोहब्बत की जा रही है, ये महबूब अपने मुहिब से कितनी शफकत देता है, कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, कितनी उसे इज्जत देना चाहता है। तो अर्ज किया कि आका मैंने देखा कि एक उसका दोस्त था जो उससे मोहब्बत करता था, जब वो दोस्त उसका महबूब इस दुनिया से रुखसत हो गया तो उस दोस्त ने आकर घर में आकर रोना शुरू कर दिया और बड़ा रोया, यार चला गया ना, महबूब चला गया, उसकी मोहब्बत में रोता रहा, उसके कफन में शरीक हुआ, उसके गुस्ल में शरीक हुआ, उसके जनाजे में शरीक हुआ। जो ही जनाजा पड़ा उसकी दोस्त की दोस्ती खत्म, फिर उसको दोस्त याद न रहा। फिर मैंने दूसरी मुहिब को देखा, वो उसका भाई था, उससे मोहब्बत करता था, वो मोहब्बत करते करते जब उसका महबूब इस दुनिया से उसका भाई चला गया तो उसके जनाजे में शरीक, उसके कफन में शरीक, उसके दफन में शरीक, और कुलखानी तक वो बैठ के अपने महबूब भाई को याद करता रहा। जो ही कुलखानी का खत्म हुआ उस भाई मुहिब की मोहब्बत भी खत्म हो गई। मैंने देखा एक और है मुहिब जो इससे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो उसका बेटा है, वो उसकी औलाद है, उससे ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो 40 दिन तक, 40वें दिन तक या वो कब्र में नजर आई, कब्र के ऊपर नजर आई, या वो घर बैठी है या मदरसे में कुरान पढ़वा रही है, और उसकी औलाद 40 दिन तक उससे प्यार करती रही। जो ही 40वां खत्म हुआ बाप की मोहब्बत भी खत्म हो गई। वो जो मुहिब था उसकी मोहब्बत भी दम तोड़ गई। हुजूर उस दिन से जब मैंने देखा कि किसी की मोहब्बत गई जनाजे तक, किसी की मोहब्बत गई कुलखानी तक, और किसी की मोहब्बत गई 40वें तक, मेरा दिल मुतमईन नहीं था कि ऐसे को महबूब नहीं बनाना चाहिए, ऐसे से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए जिसकी मोहब्बत 40वें तक खत्म हो जाए। हुजूर ने मैंने महबूब ढूंढना शुरू कर दिया कि ऐसा महबूब ढूंढूंगा, ये छोड़ जाएंगे, ये कुलखानी तक नहीं, ये जनाजे तक नहीं, बल्कि मैं कब्र में बाद में जाऊंगा, मेरा महबूब कब्र में। हुजूर उस दिन से मैंने महबूब बना लिया रब के कुरान को।
के महबूब को बना लिया। फरमा उस के महबूब बनाने के बाद आज मेरा दिल मुतमईन है, औलाद कब्र में आए या ना आए, अल्लाह का कुरान भी आएगा, मदीने से चल के अल्लाह का महबूब भी आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो औलाद की खातिर रात दिन, मैं एक बड़े दुखे दिल से एक जुमला भी बोलना चाहता हूँ यहाँ, वो ये है कि कभी गौर करें या हम कुरान की खिदमत कितनी करके जा रहे हैं, औलाद के लिए हम कितना करते हैं, कुरान के लिए कितना करते हैं। ये जो मदारिस में तलबा पढ़ रहे हैं, कारी साहबान बैठे हैं, इनसे आके कभी पूछा यार ये कुरान जो तुम पढ़ा रहे हो कि बताओ तुम्हारे खर्चा कितना होता है, तुम्हारी जरूरियात क्या है। कभी आए औलाद के लिए तो दिन रात आप कोशिश करते हैं। याद रखे मेरी बात, आखिरी जुमले में गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं, यही औलाद होगी। हदीस पाक में आता है, हुजूर की हदीस भी है, हुजूर फरमाते हैं बेटा पहचान लेगा कि मेरा बाप है, इनकार कर देगा कि तू मेरा बाप नहीं है, सिर्फ इस डर से कि कहीं आज मेरा बाप मुझसे कोई नेकी ना मांग ले। पहचान के इनकार करेगा कि मेरा बाप मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, जिसकी खातिर हम ये कुछ करते रहे। बाबा वो तो इनकार कर रहा है, वो तो इनकार कर रहा है, ये मेरा बाप नहीं है, जिसकी खातिर हम रात दिन करते रहे, वो इनकार कर देगा। कुरान गवाह है, कुरान उठाकर जाओ मैं यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुनो जुमला, खुदा की इज्जत की कसम, जहां बेटा इनकार करेगा वहां कुरान अल्लाह से झगड़ा कर रहा होगा, कुरान अल्लाह से झगड़ा कर रहा होगा बंदे के लिए। हदीस के अल्फाज हैं, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हो, कुरान आ जाएगा, अर्ज करेगा बारी ताला ये मेरा नौकर था, ये मेरी खिदमत करता था, ये मेरे साथ मोहब्बत करता था, या कभी तलबा के लिए, कभी असातिज़ा के लिए तलबा को खाना देता था, ये खिदमत करने वाला ये जहन्नम में जा रहा है, इसको माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा ये जहन्नम के काबिल है, इसके अमाल नहीं है, इसको जहन्नम का फैसला हो गया है, जहन्नम में जाने दे। कुरान अल्लाह से झगड़ा करेगा, अर्ज करेगा कि बारी ताला ये जहन्नम में जाएगा तो फिर एक फैसला और भी कर, मुझे भी इसके साथ जहन्नम में डाल। अल्लाह फरमाएगा कुरान तू नहीं जानता कि मैं तुझसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, कायनात में जितनी मोहब्बत तुझसे की है इतनी मोहब्बत तो किसी से नहीं की। जब ये जुमला बोलेगा मौला इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, अल्लाह का गुस्सा जमाल में बदल जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कुरान झगड़ना, जहां जाना चाहता है इसको ले जा रहा, जहां आपका बेटा आपका इनकार करेगा तो मेरा बाप नहीं है, वहां कुरान की वफा भी देखना। आज जिससे हम बेरुखी कर रहे हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज हमसे जिस बेरुखी कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुने, हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिआखिरीना। फरमाया मेरी गिरी हुई उम्मत उठेगी तो कुरान के जरिए उठेगी, लुटेगी तो वो भी कुरान के जरिए लुटेगी। फरमाया तरक्की मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो कुरान के जरिए, रुसवा होगी तो बोले कुरान के जरिए होगी। इकबाल ने जवाब शिकवा में, आखिरी बात, इकबाल ने जाके जवाब शिकवा में यही बात कही थी कि हर कोई मस्त मय है, ज़ौक़े तन आसानी है, तुम हो मुसलमान, ये अंदाज़े मुसलमानी है, न हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो जमाना में मुअस्सस थे मुसलमान होकर हम ज़लील ख्वार हुए तारे के। मैं बारे दीगर खराज अकीदत पेश करता हूँ अल्लामा कारी अब्दुल रशीद साहब को कि इस समय सट्टा की सरजमीन में, इस मादियत परस्ती के दौर के अंदर जहां हर बंदा अपनी ख्वाहिशात की तकमील में लगा हुआ है और ये बंदा मुस्तफा के कुरान की नौकरी में लगा हुआ है, आपको जिंदा और सलामत रखे अल्लाह ताला। मैं अपने अकाबिरीन की बारगाह में भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला कुरान के मदरसे आबाद रखे। वाखिर दावाना